कार्रवाई करते शुरू करते हुए बेनती करते हैं राजकुमार बौद्ध जी अपने विचार आए हुए साथियों नाल साझे कर राजकुमार बौद्ध जी। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। सब तो पहला इधर देखो इधर देखो हेलो इधर देखो कमल पाजी नाल हो जाओ। रेडी ओके आ जाओ बह जाओ। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। बच्चों बेनती शांति। सब तो पहला मैं बोधिसत्व विश्व रतन भारतीय संविधान के निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी जिन्हों का अज असी 132वां जन्म दिवस मना रहे हैं तो पिंड बीओवाल के सारे ही जो मैंबर आ और इत्थे की जी कमेटी आ उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां मंगल कामनावां। उस तो बाद सतगुरु रविदास महाराज जी उन्होंने नमन करते हुए सम्राट अशोक उन्होंने नमन करते हुए अज सब के लिए मंगल कामनावां। साथियों जिमें कि असीं जानते हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारत दे विच मध्य प्रदेश के विच पैदा हुए सी 14 अप्रैल 1891 और उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम सी और जिहड़ा साडा समाज सी इसनूं पढ़न लिखण का अधिकार नहीं हुंदा सी और कई समय तो कई सदियों तो इन्हों पढ़ाई तो वांझे रखा जाता सी। अंग्रेजी हुकूमत दे विच एक कानून सी कि अपने समाज दे विच जिहड़े अंग्रेज़ों की गुलामी करते सी या अंग्रेज़ों की सरकार दे विच नौकरी करते सी उन्हां दे बच्चों नूं पढ़न लिखण का जिहड़ा अधिकार सी वो अंग्रेज़ों ने दिता सी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के पिता जी सूबेदार सी तो उन्होंने जिहड़े बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं पढ़न का अधिकार मिलिया पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं जदों स्कूल दे विच जाना पैंदा सी तां उन्हां नूं क्लास के बाहर बिठाया जाता सी क्योंकि उस समय भारत देश के विच
ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੱਤਰੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਯ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 132 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੰਬਲ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਯਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨੋਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ 302, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ 326 307 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਠੇਕੇ, ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ MBBS ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਊਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਛੱਪੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो बाबा साहब जी ने ਇੰਨੀ पढ़ाई जो भी उन्होंने प्राप्त किया उन्होंने सारा साडे समाज के लेखे लगाया। किद्दां लगाया? उन्होंने कहा कि मेरा समाज भी इस देश के विच राजा बनना चाहिए, असी भी इस देश के हुक्मरान बनने चाहिए हैं, असी भी सरकारां चलाउणा चाहुंदे हैं। पहला समा यह सी कि मां दे पेट दे विचों राजा पैदा हुंदा सी और अज वोट के बक्से दे विचों राजा पैदा हुंदा। ये वोट का जिहड़ा अधिकार आ कि सानू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के त्याग दे करके मिलिया होया। सानू ये बहुत सोच विचार करना पैंदा कि साडी जिहड़ी वोट आ ये किहनूं देनी हुंदी है। जदों सानू 2 वोट का अधिकार मिलिया कि मोहन लाल करमचंद गांधी जिन्हों की असी नोट के उपर फोटो देखते हैं, उस इंसान ने मरण वर्त रख के साडा जिहड़ा दोहरी वोट का हक सी साडे तो खो लिया और बाबा साहब जी को मजबूर होना पिया उसके अगे। फिर भी बाबा साहब जी ने हार नहीं मनी और लगातार संघर्ष करते रहे। क्यों करते रहे? कि मेरा समाज किते ना किते इस देश का हुक्मरान बने और आप सरकारां चलाए। अज साडा बच्चा भविख जो कि आने वाले समय दे विच भारत देश का भविख आ, ये अज किधर नूं जा रहा है? इन्हों अज्ञान के पासे लगाया जा रहा। बाबा साहब जी सानू एको गल कहते सी कि जेकर अज मैं इस मुकाम से पहुंचा तो मैं सिर्फ अपने कर्मां दे करके पहुंचा, मैं किसी रब से विश्वास नहीं करता, किसी देवी देवते से विश्वास नहीं करता। मैं अज तक किसी भी देवी देवते नूं मत्था नहीं टेकिया और मैं अपने समाज नूं यही बेनती करदा कि जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि अज साडे घरां दे विच अंबेडकर साहब वर्गा बच्चा पैदा होवे तो वह बाबा साहब जी के मिशन नूं जरूर याद रखे। बाबा साहब जी का मिशन सी इस देश नूं बोधमई बनाउणा। बाबा साहब जी का मिशन सी इस देश नूं बोधमई बनाउणा और बोधमई तो भाव की आ? अज साडे लोकां दे विच बुद्ध का नाम सुन के ही डर महसूस होने लग पैंदा। बुद्ध कोई खतरा नहीं, बुद्ध तो भाव है दिमाग ज्ञान की प्राप्ति करना। असी जदों बच्चों को स्कूल भेजते हैं सवेर नूं तैयार करके तो बच्चों कहने पुत जाओ वधिया पढ़ के आओ, वधिया ज्ञान की प्राप्ति करो। तो उदों भाव की हुंदा? असी कहने बुद्धं शरणं गच्छामि कि साडे बच्चे हमेशा बुद्ध की शरण में रहन, ज्ञान की शरण में रहन। इन्हों इन्ना दिमाग बधे कि यह बाबा साहब जी वांग दुनिया को हिलाउण, क्योंकि बाबा साहब जी सिंबल ऑफ नॉलेज है। सब तो वड्डी गल ये सानू ध्यान रखनी चाहिए कि बाबा साहब जी की जो प्राप्ति दुनिया के विच हुई है वो उन्होंने ज्ञान दे करके हुई है। तो साडे बच्चे सब तो पहला पढ़ाई कर। दूसरे नंबर पर सी कि मेरा जिहड़ा समाज आ ये इकट्ठा रहे। मनुवादी ताकतां ने तुहानूं बखेरन की कोशिश करनी आ, तुहानूं तोड़न की कोशिश करनी आ, पर तुसीं टुटना नहीं। तुसीं अपने आप नूं स्थिर बना के रखना, इकट्ठे रहना। तो इकट्ठे रहने लिए उन्होंने की किया? तमं शरणं गच्छामि। तमं शरणं गच्छी तो भाव की हुंदा? धर्म सिखावे एकता, धर्म सिखावे प्यार। जदों भी असी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਮਾਤਰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੁਤਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਚ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਖਲਾ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। तो ये ਏਜੰਸੀ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ जिस समाज के जिन्होंने रैपरां का साडे विच खून आ वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होए। उन्होंने बड़े बड़े कष्ट सह के इस समाज के अनेकों औंकड़ों के राही मिशन को कामयाब किया। जिन्ना भी उन्होंने मिशन कामयाब किया अज असी देख रहे हैं। असी की देख रहे हैं कि साडे बच्चों को स्कूल कॉलेज मिल रहे हैं, इन्हों वधिया पढ़ाई और उस तो बाद नौकरी भी मिल रही है। अज के हालातों के नौकरी थोड़ी प्राइवेट हो गई, पर अज तो 10-20 साल पहला साडे समाज के बड़े लोग वो नौकरियों के विच गए आ। वो क्यों गए? बाबा साहब की देवता और उन्होंने ही बाबा साहब जी ने की मैसेज लाया सी, पे बैक टू सोसाइटी। उन्होंने एक ही मिशन सी कि जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ और जे उसनों उसके बदले जी सैलरी मिले वो 70,000 80,000 के करीब मिले तो वह अपना खर्चा नॉर्मल आम इंसान वाला रख के बाकी पैसे अपने समाज को उपर चुकने लिए लगावे, क्योंकि मैं सिर्फ अज इन्ना ही कर सकता। दूसरा कि अपने बच्चों कभी भी पढ़ाई तो वंचित ना रखना, क्योंकि जेकर ये पढ़ाई तो वंचित रह गए तो मनोवादी ताकतां ने इन्हों पुठे पासे लगा लेना, इन्होंने कोलों गलत काम करवाने जिहदे नाल असी नीचले पासे नूं चला जाना। तो उन्होंने की कीता, उन्होंने साडे सामने काल्पनिक देवी देवते और लिया के खड़े कर दिते। काल्पनिक देवी देवते जिस दे विच शिव जी,
ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति कृष्ण ये सारे जड़े लिया के खड़े कर दिते। तो बाबा साहब जी ने देखा कि मेरा समाज तो अगे अज्ञान दे विच आ, इहनूं बेचारे नूं की पता। तो उन्होंने 14 अक्तूबर 1956 नूं एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने साडे समाज के लिए 22 प्रतिज्ञा दित्तियां कि मेरे समाज के लोगों जेकर तुसी मैनू हमेशा जींदा रखना चाहुंदे आ ते आ 22 प्रतिज्ञा नूं जरूर अमल विच लियाउणा। तो उन्होंने जिहड़ी पहली प्रतिज्ञा सी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नूं कदे भी ईश्वर नहीं मन्नागा। की किसी नूं पता है कि बाबा साहब जी ने प्रतिज्ञा की सी? शायद बहुत घट इंसान जानते हैं। नागपुर की धरती से बाबा साहब जी ने डट के प्रतिज्ञा ली कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नूं कदे ईश्वर नहीं मन्नागा, ना ही कदे उन्होंने पूजा करांगा। तो सारा हिंदू समाज बतला गया। फिर उन्होंने की किया कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवते की पूजा नहीं करांगा, मैं श्राद्ध नहीं करांगा। अज साडा समाज उन्होंने उल्ट चल रहा है। असी श्राद्ध कर रहे हैं, मरिया के श्राद्ध कर रहे हैं। असी हिंदू देवी देवत्या की शरण में जा रहे हैं। हिंदू देवी देवत्या ने सानू कदे पार नहीं लगाना, सानू पार लगाना बाबा साहब जी ने। उन्होंने मिशन नूं लेके अगे चलना। तो उन्होंने मिशन किया, मैं चाहना इस देश के विच स्वतंत्रता बनी रहे, हर एक नूं बराबर आज़ादी मिले। बराबर आज़ादी तो भाव कि कोई छुआ-छात ना होवे। आपां नूं पता होवेगा कि एक समा इदां दा बतीत होया कि जदों औरत दे पति मर जांदा सी तां उसनूं उसे चिता दे विच अग ला के फूक दिता जांदा सी, जिसनूं सती प्रथा कहते सी। तो बाबा साहब जी ने उस चीज़ नूं खत्म किया। होर भी बहुत बुराइयां नूं खत्म किया, पर एक बुराई उन्हां तों खत्म नहीं हो रही सी। वो सी औरत जात नूं पढ़न लिखण का अधिकार देना। बाबा साहब जी ने औरत जात के पढ़न लिखण के उत्ते बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की। और फिर भी जिहड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू सी उन्होंने रोकदा सी कि औरत घर दे विच रहण वाली सिर्फ गृहिणी होनी चाहिए आ, घर के कामों तो बाहर इनू बाहर नहीं कढ़ना। तो बाबा साहब जी ने कानून मंत्री होंदे हुए अपना त्याग पत्र देने की कोशिश की। उस वेले हिंदू कोड बिल बनाया गया, औरत नूं पैर की जुत्ती तो सिर का ताज बनाया गया। बाबा साहब जी औरत जात के दुख मुक्ति के दाता आ। सिर्फ पहली बार भारत देश के विच किसी इंसान ने जेकर कोई अटूट फैसला किया तो बाबा साहब जी ने किया। औरत जात नूं हर तरह का अधिकार दिता, हर खेत्र के विच बराबर नौकरी पाने का अधिकार दिता, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिता, CM PM बनने का अधिकार दिता। किहने दिता? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और अज असीं देखते हैं कि साडियां भैणां मातावां और बाबा साहब जी नूं भुल गईयां और कित्थे चल गईयां? देवी देवत्यां दी शरण में चले गईयां। किसी देवी देवते का इतिहास नहीं है, सारे ही काल्पनिक आ, रचे गए आ। कितना पता लग सकता? पूरी दुनिया दे विच बतीत करके देखो, कोई इन्हां देवी देवतियां नूं नहीं जानता। और जेड़े अंग्रेज आ उन्होंने बाबा साहब जी नूं सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों मन्निया? इहदे पिछे भी एक बहुत बड़ा कारण आ। उन्होंने पता लग गया सी कि यह इंसान इस मनुख जीवन का जो उद्देश्य आ उन्होंने जान गया है कि मनुख थोड़े समय लिए इस संसार के विच पैदा होके की पाउण लई आया। तो उन्होंने की दस्सिया कि ये सारी जिहड़ी सृष्टि आ ये माइंड एंड मैटर के नाल चल रही है। माइंड तो भाव आ साडा मन और मैटर तो भाव आ ये वस्तुआं जो असीं देख रहे हैं। तो बाबा साहब जी ने सारा जिहड़ा ध्यान आ वो अपने मन नूं अपने कंट्रोल विच करन लई लगाया कि मेरे विच कभी भी कोई गलत औगुण पैदा ना होवे। और तुसीं जेकर उन्हां दी हिस्ट्री पढ़ो तो यह गल तुहाडे दिमाग दे विच पक्की आ जाएगी कि उन्ने समय दे विच बाबा साहब जी नूं कभी किसी के उपर गुस्सा नहीं आया सी। बाबा साहब जी के मन दे विच कभी लालच नहीं आया सी।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਵਾਈ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੰਦੂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। तो अज असी बाबा साहब जी का जो जन्म दिवस मना रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जागृति वाले पासे लेके जा रहे हैं कि चलो साडी तो उम्र बीत गई, असी तो जिदा का मर्जी जीवन व्यतीत कर लिया, पर ये जोड़े साडे कोमल कोमल बूटे आ जिन्होंने इस देश के अगे समा रहना आ, इन्हों की भविख मिलने वाला आ कि इन्हों जो असी प्राप्त किया वो प्राप्त कर सकते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि अज देश के मनुवादी लोग सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। बाबा साहब जी ने सरकारी किया सी, वो कहते सी कि मेरे लोग सरकारी नौकरियां दे विच रहन, असी अपना टैक्स कटावांगे और साडे समाज के लोग उहदे विच नौकरी करते हुए जिंदगी वधिया बतीत करनगे। पर अज असी टैक्स तो दे रहे हैं कि किसी को पता कि इस बार अपने विधान सभा दे विच फरवरी महीने दे विच कितना टैक्स कितना बजट पास होया? शायद किसी को पता होवे 1,96,000 करोड़, 1,96,000 करोड़ का बजट पंजाब का पास होता है। और साडे एससी समाज सिर्फ एससी जेकर असी देखिए तो साड़ी एजुकेशन के लिए 11,000 करोड़ का बजट मिलता, 1,96,000 करोड़ तो 11,000 करोड़ का बजट एजुकेशन लिए मिलता, और साढ़े बच्चों ने सिर्फ 60 करोड़ का बजट मिलता। सोचो 60 करोड़ के साढ़े बच्चों को नौकरियां कितों मिलणगियां, इन्हों वधिया पढ़ाई कितों मिलेगी, किताबां कितों मिलणगियां? पर यह क्यों हो रहा? क्योंकि असी सुते हुए, असी जाग नहीं रहे, असी दिन रात अपने कामों के विच मस्त हाँ, पर सानू नहीं पता कि साडे वोट नूं लैके ये मनुवादी लोग अज भी सानू उस स्थिति में लैके जाना चाहते हैं जिथों बाबा साहब जी ने सानू गंद चों कढ़िया सी। तो मेरे समाज के लोगों
सतगुरु रविदास जी की बाणी है। सतगुरु रविदास जी कहते सी, बेगमपुरा शहर का नाम दुख अंधो नहीं तिस ठाऊं, ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। तो ये जिहड़ी बाबा सतगुरु रविदास जी ने गल कही सी तुहाडे लई कि मैं एक अजिहे बेगमपुरा नूं देख रहा हाँ, बेगमपुरा जिथे किसी प्रकार का दुख ना होवे, और किहदे दुख ना होवे, इंसान की गल की गई है कि बेगमपुरा शहर का नाम दुख अंधो नहीं तिस ठाऊं, कि उत्थे किसी प्रकार का दुख नहीं। क्यों दुख नहीं? वो कहते ना तस्वीर खराज ना माल, कि उत्थे किसी वस्तु की कोई फिक्र नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ नहीं लगोगे। और खौफ ना खता ना तरस जवाल, कि उत्थे कोई डर डुकर नहीं है। तो वो चीज़ नूं साडे महापुरुष बोधिसत्व विश्व रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा करने की कोशिश की। वो पूरा किवें कीता? तुहानूं संविधान दे के। वो कहते जिन्ना चिर ये संविधान जीता रहेगा, तुहाडे वालों कोई उंगल चक के देख नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जिहड़े विच कानून बनाए आ, तुहानूं मुढ़ले अधिकार दिते आ। मुढ़ले अधिकारां दे विच जिहड़ा आपां इकट्ठ लगा के बैठे आ, ये साडे मुढ़ले अधिकारां विच आउंदा। जिहड़ा मैं स्पीच कर रहा, ये साडे मुढ़ले अधिकारां विच आउंदा। सानूं गल करन दा अधिकार दिता, चार बंदियां नूं इकट्ठे होकर बहन का अधिकार दिता, जबकि पहलां ये अधिकार नहीं हुंदे सी। कोई भी बंदा अपनी गल नहीं रख सकता सी। तो बाबा साहब जी साडे समाज ने किन्नी देन आ, ये असी जेकर उन्होंने पढ़ांगे तो सानू समझ आएगा। साडे दुखों के मुक्तिदाता कौन आ? जेकर असी देखिए तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आ। उस तो बाद दूजा नाम अज के समय के विच साहब श्री कांशी राम जी होए आ। उन्होंने बारे थोड़ी जी गल दसना चाहना कि वो एक अफसर सी, पर जो उन्होंने पता लगा कि मेरे अफसर मान लो सरकारी रैंक के विच रहन ते भी मेरे नाल धक्का हो रहा, तो उन्होंने अपनी नौकरी नूं लत्त मारी और समाज दे विच आ गए। तो उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट दी कि मैं समाज के लिए काम करना चाहना, पर मेरे समाज के लिए 3-4 वादे आ। पहला वादा मेरा ये सी कि मैं अज तो बाद अपने घर वापस नहीं जावांगा। साहब कांशी राम जी ने जीने जी अपने घर का त्याग किया। उस तो बाद उन्होंने कहा कि मेरे खाते दे विच 5 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तीसरा उन्होंने वादा किया, मैं कभी भी किसी के ब्याह शादी दे विच नहीं जाना, मौत दे विच नहीं जाना, क्योंकि मैं अपने समाज नूं इन्हां चक्करां दे विचों आज़ाद करना आ, मेरे को टाइम नहीं। तो वो साहब श्री कांशी राम जी बाबा साहब जी नूं लैके घर घर पिंड पिंड शहर शहर तुरदे गए। जदों उन्हां दा काफिला बड़ी अग फड़ गया, पूरे इंडिया दे विच उन्हां दा नाम फैल गया, तो मनोवादी ताकतां ने उन्हां नूं भी खत्म किया। टुकड़े को लेकर हर बहना और मां रोती, अपने दुख लेके हर भैन और मां नूं रोना पैना सी जेकर बाबा साहब जी संविधान ना लिखते। और उन्होंने संविधान लिखण दे लई किन्नियां औंकड़ां दा सामना करना पिया, ये शायद असी नहीं जानते। किवें एक अछूत समाज दे विच पैदा होके इंसान उस सभा दे विच पार्लीमेंट दे विच पहुंचता है और उस देश का संविधान लिखता है जिथे उन्हां दी हालत, उन्हां दे समाज की हालत जानवरों तो भी भैड़ी बनी गई। तो सोचण से सानू ध्यान देना पवेगा कि बाबा साहब जी दे विचों किहड़ी शक्ति सी जिहड़ी उन्हां नूं दलेर बनाउंदी सी, जिहड़ी उन्हां नूं मजबूत करदी सी, उन्हां नूं डोलण नहीं दिंदी सी। तो वो सी सिक्ख्या, ज्ञान। ये कोई छोटी जी चीज नहीं है। साडे सतगुरां ने, साडे गुरुआं ने बार बार इस चीज के उपर ध्यान दिता। और जे मैं गल करा अज तो 2500-2600 साल पहला दी, जदों भाषा का जन्म होया, जदों लिपि का जन्म होया,
उदों कहते पाली भाषा पहली होंद विच आई, तो उदों तथागत सम्यक संबुद्ध होए जिन्होंने अपने अंदरों ज्ञान की प्राप्ति करके मनुख जीवन के कल्याण के लिए सानू सिक्ख्या दी। तो उन्होंने जिहड़े शब्द आ मैं उन्होंने तुहानूं दस्सण की कोशिश करदा। उन्होंने की कहा, अविद्या पचया संखारा, संखारा पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूपन, नाम रूपन पचया छे आयतन, छे आयतन पचया फसो, फसो पचया वेदना, वेदना पचया तणा, तणा पचया उपादान, उपादान पचया फस, फस पचया भव, भव पचया जाति, जाति पचया यरा मरणन शोक परिदेव दुख दम सपाया सा संबंधी। तो जी ये लैन बोली ये सब तो पहला शब्द सी वो सी अविद्या। अविद्या तो भाव अज्ञान, जिदा विद्या शब्द आ उन्होंने ज्ञान कहा जाता, उदों अविद्या अज्ञान को कहा जाता सी। और जो इंसान अज्ञानी होंदा सी तो इन्ने स्टेजा पर पैदा होया वो दुख को प्राप्त करता सी। तो साडे महापुरुषों ने सानू दुख तो बचाने के लिए तरह तरह के उपराले किए। कबीर साहब जी जिन्हों के बारे भी तुसी जानते हो, उन्होंने भी सानू बहुत बचाया। उन्होंने की किया, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। क्यों किया उन्होंने ये गल? क्योंकि साडा जिहड़ा समाज सी वो जात पात के बंधनां च बच चुका सी। अपनी जात के लोग उन्होंने प्यारे लगते सी और दूसरी जात के लोग उन्होंने प्यारी लगते सी। पर यह जात पात का जिहड़ा कीड़ा साडे दिमाग दे विच सुटिया, ये किहने सुटिया? ये मनुवादी ताकतां ने, बाबा साहब के विरोधियों ने सुटिया। इस गल तो भी सानू जाणू होना पवेगा। अज सानू अपनी जात से गर्व आ, पर यह गर्व नहीं, तुहाडे विनाश का कारण है जात। जिन्हां महापुरुषों ने जात पात को तोड़न के लिए संघर्ष किए, ये उन्होंने महापुरुषों दीयां फोटोआं। सतगुरु रविदास कहते सी, जात जात में जात है जो केलन में पात। वे जात दे विच जात छुपी हुई है। जात पात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्य जात को खा रहा जात पात का रोग। साढ़े सतगुरु जी कहते कि साडा जिहड़ा समाज आ ये जात पात के बंधन दे विच फस चुका और मनुष्य जात नूं खा रहा जात पात का रोग। कि अज असी मनुष्य मनुख इंसान आ, पर साडे अंदर इंसानियत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असी जात पात के विच वंड होए। और जे अज असी इस देश दीयां मनुवादी ताकतों के नाल लड़ाई लड़नी आ ते कोई भी एक जाति इकट्ठी होकर उन्हां ताकतों के नाल लड़ाई नहीं कर सकती। सानू जात पात के इस कोट तो बचना पवेगा। तो सानू की बनना पवेगा? सानू भारतीय बनना पवेगा। कोई सानू हिंदुस्तानी बनाना चाहता, कोई सानू खालिस्तानी बनाना चाहता, कोई कुछ कहना चाहता, पर साडा इको ही नारा, हम सब भारतीय रहें। जेकर असी भारतीय रहांगे तो लोकतंत्र जिंदा रहूगा, और लोकतंत्र जिंदा रहूगा तो इस देश के विच इंसान बराबर जिंदगी प्राप्त कर सकूगा। नहीं तो इत्थे लड़ाइयां झगड़े होंदे ही रहने आ। तो सानू अपनी मनोदशा चेंज करनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्तूबर 1956 एक तो 22 प्रतिज्ञा दी कि मैं किसी हिंदू देवी देवते को नहीं मनागा। एक उन्होंने होर बहुत बड़ा नारा दिता, गल कही कि मैं अज तो बाद बुद्ध की शरण में जा रहा हाँ। ये बुद्ध की शरण की आ, इनू बुद्ध नूं धर्म ना समझ लेना, धर्म एक सांप्रदायिक होंदा। इस तो बाद सी कि मैं चंगे लोगों की शरण में जा रहा, मैं जिहड़े सच नूं पसंद करते आ उन्होंने शरण में जा रहा, जिहड़े स्वतंत्रता समानता न्याय और भाईचारे को मजबूत करना चाहते आ, मैं उन्होंने शरण में जा रहा। तो पूरे भारत देश के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के इस बाबा साहब जी की गल नूं स्वीकारिया गया, मन्निया गया। तब उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज कि वाकई ही इस इंसान नूं नॉलेज आ, जानकारी आ कि वाकई एक जो इंसान आ
ये दूसरे इंसान का दुश्मन नहीं आ। असी कुछ समय का समा लैके इस धरती के विच बहुत खुशहाल जिंदगी जीण लई आए हैं और कुदरत के स्रोतों को मान रहे हैं। पानी, हवा, अग ये सारे कुदरती आ और साडे मनुवादी लोगों ने इन्हां दे उपर भी टैक्स लगा दिते आ। इन्हां नूं दिन प्रतिदिन खराब किया जा रहा, वनस्पति खत्म की जा रही है। तो सानू की करना पवेगा, अपने बच्चों के भविख के लिए कुदरती शान में जाना पवेगा। धर्म जिदा सूरज किसी के नाल फर्क नहीं करता, गरीब नूं भी रोशनी दिंदा, अमीर नूं भी रोशनी दिंदा। हवा चलती है वो गरीब के घर वक्री नहीं जाती और अमीर के घर ज़्यादा नहीं जाती। उसके नज़र के विच असीं सारे समान आ। तो जिहड़ा भी मनुख अज ये प्रतिज्ञा करके जाएगा कि मैं अपना जात पात तोड़ के बाबा साहब जी के मिशन के नाल चलांगा, धर्म की शरण में जावांगा, बुद्ध की शरण में जावांगा और चंगे लोगों की संग में जान जावांगा, वही इंसान बाबा साहब जी का काफिला अगे लेके जा सकता। बाबा साहब जी का जो काफिला सी कि मैं अपने देश नूं, अपने देश के नौजवानों नूं इस देश का हुक्मरान बनाना चाहना, इस देश का राजा बनाना चाहना और वही इंसान मेरे इस काफिले नूं अगे लेके जा सकते हैं जिहड़े पहला तो ज्ञानवान बन गए, बुद्ध की शरण प्राप्त करनगे। और बुद्ध की शरण कितना प्राप्त हो सकती है? तो पाली भाषा के यही शब्द चले आ रहे, पाणा तिपाता अवेर मणि सिक्खा पदन समाध्यामी। तो पाणा तिपाता भाव की किसी भी प्राणी नूं दुखी नहीं करना। ये जिहड़ी बाणी अज तो 2600 साल पहला चलती आ रही, अधीना दाना वेरमणि सिक्खा पदन समाध्यामी, चोरी नहीं करनी, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदन समाध्यामी, दुराचार नहीं करना, मूसावाता वेरमणि सिक्खा पदन समाध्यामी, झूठ नहीं बोलना और सुरा मेरे मज परमाद उठाना वेरमणि सिक्खा पदन समाध्यामी। तो मतलब नशा नहीं करना। तो मेरी सारे एको ही बेनती है, अज असी बाबा साहब जी के जन्मदिन दियां सारे बधाइयां दे रहे हैं। बधाइयां तो भाव हुंदा तुसीं वधो, बाबा साहब जी के मिशन में वधो, इन्हों को वधो कि हर घर के अंबेडकर पैदा हो जाए। इन्होंने मनोवादी ताकतों को पता लग जाए कि साडा अंबेडकर साडे विच इन्हां बच्चों के विच बैठा है। इन्हां बच्चों चों असीं अंबेडकर लभना और असीं तुहाडे लई बेनती करना है कि इन्हों कभी भी बाबा साहब जी के उल्ट रास्ते में ना लेके जाना। असी चले गए कोई गल नहीं, इन्होंने बच्चों सिर्फ बाबा साहब जी के मिशन के नाल जुड़ के रखना। जिहड़ी गल उन्होंने कही इन्होंने दिमाग के वो गल भर दो। तो मैं इस गल की गारंटी दिना कि सतगुरों का जो मिशन सी, जो सतगुरों का सुपना सी, सतगुरु रविदास जी का बेगमपुरा का, ये बच्चे जरूर पूरा करेंगे। ये बच्चे जिन्होंने अज पुरस्कार मिले नाम मिले इन्होंने साडा अंबेडकर छुपिया बैठा, वो सानू दीदा नहीं, पर असी उसकी खोज करनी। कितना करनी? जिदा दुध के घे छुपिया होंदा और सानू मेहनत करनी पैंदी आ, उन्होंने रिड़कना पैंदा, दही लगाना पैंदा, फिर उन्होंने करके वो घे बाहर कढ़ लिया जाता। और घे एक अजिही चीज़ आ जिहड़ी अमर हुंदी है, कभी खराब नहीं होंदी। तो साडे जिहड़े बच्चे आ जेकर ज्ञान की शरण में जाणगे तो बाबा साहब का मिशन जरूर पूरा करनगे। बाबा साहब जी का दूसरा जिहड़ा मिशन आ वो यही आ कि मैं इस देश नूं बौद्धमई बनाना चाहना। हिंदू धर्म उन्होंने खिलाफ सी, हिंदू धर्म के विच साडी कोई वैल्यू नहीं है। और ये जिहड़े देवी देवतां की असीं पूजा करते हैं ये सारे हिंदू धर्म के विच ही आ। बौद्ध धर्म के विच किसी देवती की पूजा नहीं की जाती। किहदी की जाती? इन्हां महापुरुषों की पूजा की जाती है। सतगुरु रविदास जी की, सतगुरु कबीर साहब जी की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की। और किसी भी मंदिर के विच तुहानूं इन्हां साडे महापुरुषों की फोटो नज़र नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने हमेशा रोंदे रहे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबन की एक ही जात का नारा लगाया कि असी मानव या मानस की जात सबे एको पहचानो। तो मानस की जात
सानू एक पहचाननी चाहिए। जेकर असीं अपने बाबा साहब जी के मिशन नूं अगे लेके जाना चाहुंदे हैं, बाबा साहब जी का जो मिशन है उन्होंने घर घर पहुँचाना चाहुंदे हैं, तो सानू जो इहो जिहे प्रोग्राम होंदे आ उन्हां दे विच आप अपने परिवारों के समेत पहुँचना चाहिए। और जिहड़े भी असीं बाबा साहब जी के अगेंस्ट काम करते हैं, असीं श्राद्ध करते हैं, असीं मंदिरों में जाते हैं, तो सानू उन्होंने बंद करना चाहिए और अपनी कमाई का एक एक रुपया बाबा साहब जी के जोड़े मिशन के लगे हुए साडे कमेटी मैंबर उन्होंने देना चाहिए, तां जो तुहाडा पैसा तुहाडे कल्याण के लिए वरतिया जाए। जिहड़ा अज साडा पैसा जा रहा वो सानू गुलाम बनाने वरतिया जा रहा। उही पैसे दे नाल ये लोग साडे भोले भाले जनता दियां वोटां खरीद लेंदे आ, 500 रुपया दे के साडी वोट की कीमत लगती है। पर बाबा साहब जी की कहते सी कि मेरी दिती हुई इस वोट नूं नॉर्मल ना समझ लेना, ये अनमोल आ, इहदा मुल नहीं है। और जेकर तुसीं इहनूं देखना चाहो तो इसनूं अपनी बेटी के रूप में देख लेना, जिद्दां असीं अपनी बेटी के लिए सोहना जवाई लभदे हैं, उसकी पूरी परख करते हैं कि ये गलत तो नहीं। इस तरह वोट देने तो पहला उस नेता की उस उम्मीदवार की पहचान जरूर करना कि मेरी जी वोट आ ये किस की झोली में पै रही है, कि ये मेरे समाज का भला करूँ या नहीं करूँ। जे नहीं करूँ तो अपने बच्चों हुण तो ही सिक्ख्या दो राजनीति की कि बच्चों बाबा साहब जी ने उंगल की इस तरीके की कि संसद तो बिना तुहाडा भला नहीं होना। सानू संसद में हम अटैक करना पऊगा, संसद से राज करना पऊगा, तद ही असी अपने देश दे विच वधिया जिंदगी व्यतीत कर सकांगे। नहीं तो अज साडे बच्चे का सुपना की आ आईलैट्स करके विदेशों के विच जाना और विदेशों की गुलामी प्राप्त करनी। भारत देश एक समय दे विच अजिहा देश सी जिहनूं सोने की चिड़िया कहा जाता सी। अज भी असी इस देश नूं सोने की चिड़िया बना सकते हैं, पर सानू ये संकल्प लेना पवेगा, एको ही संकल्प लेना पवेगा कि जे साडे लिए बाबा साहब जी ने कुछ किया असी उन्होंने देन देना है, तो सानू उन्होंने शरण में जाना चाहिए, उन्होंने पढ़ना पैना, उन्होंने मिशन को अगे लेके जाना पैना। तो इसे आस के नाल अज पिंड मीओवाल के सारे ही महला निवासियों को बहुत बहुत बधाइयां। समूह ग्राम पंचायत पिंड मीओवाल उन्होंने लिए बहुत बहुत मंगल कामनावां बधाइयां कि जिन्होंने अपने इस पिंड दे विच बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाने का जोड़ा एक काम किया बहुत ही सराहनायोग आ। इदां दे प्रोग्राम हर पिंड दे विच होने चाहिए, घर घरां दे इकट्ठे होकर इहो जिहे प्रोग्रामां नूं करो तां जो साडा समाज अज्ञान तो बच सके, इन्हां हिंदू देवी देवतियां दे पखंड चक्कर चों निकल सके। असीं भी बाबा साहब जी नूं फॉलो किया और अज असीं ये गर्व नाल कह सकते हैं जय भीम। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि असीं मंदिरां दे विच नहीं जाते, असीं किसी देवी देवते नूं नहीं मानते, किसी श्राद्ध असीं नहीं करते, और जेकर जाने तो बुद्ध की शरण में जाने, पढ़ाई करते हैं, कुदरत की शरण में जाने, इंसान नूं इंसान देखते हैं। समाज दे विच इंसान दे विच सिर्फ 2.5 जातां है, ध्यान देना, एक पुरख मनो बंदा जिन्हों कहने असी, एक औरत और तीसरा जिन्हों असी महंत कहने, वो 2.5 जातां, इस तो बाद कोई जात नहीं। अज साडा जिहड़ा समाज आ 7,643 जातां दे विच वंड हो चुका, 7600 जातां, और असी टुट गए। और असी कितना हुक्मरान बनना, अजे टुट के बह गए। और ये साडे रहबर सानू जोड़न लई आए, असी उन्हां दा सुपना जरूर पूरा करना। इस संकल्प के नाल अज बाबा साहब जी के जन्मदिन से प्रण करो कि बाबा साहब जी तुहाडी सोच ते पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब जी तुहाडी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत धन्यवाद जी राज कुमार बोर जी, जिन्होंने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपने समाज के साथियों को वधिया संदेश दिता बाबा साहब जी की जीवनी ते। और असी धन्यवाद करते हैं धर्मेंद्र भुल्ला राय जी, जो कि साडे मेरे गुरु जी भी ने, जिन्हों ने मैं नाटक करने जिन्हों को सीखा हुआ। धर्मेंद्र भुल्ला राय जी खास तौर पर साडे विच आए ने, और मैं धर्मेंद्र भुल्ला राय जी को बेनती करदा, क्योंकि उन्होंने को समा बहुत सीमित है। ये समाज के बड़े चिंतक ने, और हर नगर दे विच हर शहर दे विच मेरे बड़े वीर जाके साडे समाज को जाके जागरूक करते हैं। सो बेनती करदा धर्मेंद्र भुल्ला राय जी, जो कि अपने शब्दों के नाल बाबा साहब की जीवनी के बारे सानू दसणगे। सो बेनती करते हैं धर्मेंद्र भुल्ला राय जी। परम सत्कारयोग पिंड माओवाल दी समूह साध संगत नूं जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, जय भगवान वाल्मीकि महाराज जी, जय सतगुरु रविदास महाराज जी। और मीरवाल दे पिंड तो मैं बहुत पहला का वाकफ हाँ। उसका कारण की है कि जिहड़ा अज साडे डॉक्टर साहब ये किसी वेले साडे विद्यार्थी रहे ने, पर अज सानूं उन्हां दे उत्ते माण महसूस हो रहा भी जिहड़ा ये लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। जिहड़ी पूरी पिंड की पंचायत बैठी आ, पूरा नगर बैठा, और पूरे जोरा शोरा नाल बाबा साहब अंबेडकर जी का जिहड़ा तुसीं जन्मदिन मना रहे हो। सुनील का नाम शीला ते नाटकां दे विच साडा गीडी, जिहड़ा कि बेस्ट एक्टर का जिहड़ा अवार्ड भी इन्हां नूं कॉलेज दे विचों मिलिया सी। ते उस वेले मैं भी कॉलेज दे विच काम करदा सी, ते साडा विद्यार्थी सीगा, और विद्यार्थी के नाल होनहार स्टूडेंट भी सीगा पढ़ाई दे विच। सो पहला तो मैं इस अपने भरा के छोटे भरा के नाते ताड़ियां चाहुंदा कि ये इत्थे ही बहुत दूर दूर तक काम करके आ गया। बाकी मेरे वालों तुहानूं बहुत बहुत बधाई होवे। मैं अपनी गल करन तो पहला मैं इन्हां बच्चों नाल गल करनी है। बच्चों बेटा इधर मेरे वाल देखो, तुसीं स्कूल जांदे होंदे आ? जिहड़े जांदे हथ खड़ा करो। ये स्कूल जांदे आ, ये सारे गुड बच्चे आ जिहड़े स्कूल जांदे आ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਈਦਾ, ਚਲੋ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਈਦਾ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ? ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ मैं अपनी गड्डी की डिग्गी दे विच पा के भुल्ला राही ले जाना। फगवाड़े दे नाल मेरा पिंड आ, पर उस तो पहला मैं जाके इधर नूरमहल दे विच दी हो के मैं हुणे भाजी कमलजीत जी उन्होंने पुछदा हटिया भी मैं थापड़ के जाना। इस तो बाद जड़ियाले दे कोल पिंड आ, देखो किड्डी किड्डी दूर तक तुहानूं घुमाऊंगा जे तुसीं गल्लां कीतियां। ठीक है? आपां हुण थोड़ियां जिहियां गल्लां सुणनियां। मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ पिंड दी पंचायत दा, बहुत बहुत धन्नवादी हाँ इत्थे दे नौजवानों का, अपनियां बीबियां भैणां मातावां दा, जिहड़े एडे वड्डी मात्रा दे विच अपने उस पुरखे उस युग पुरुष नूं याद करन दे वास्ते, उहनूं सच्ची श्रद्धांजलि देण वास्ते, और ओदी जिहड़ी गोद दे विच बैठ के ओदे गुणगान सुनने दे वास्ते ते अपनी पीढ़ी दी चिंता करने वास्ते तुसीं इकट्ठे होए हो। तुहाडे दरमियान साडे बहुत ही सत्कारयोग राजकुमार बौद्ध जी, जिन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी। मैनूं लगदा कि मैनूं बोलना ही नहीं चाहिए, उन्हें सारा कुछ ही बोल दिता। और फिर भी मैं अपना अखलाकी फर्ज समझदा जेकर मैं तुहाडे दरमियान आया तो थोड़ी जी गल जरूर बाबा साहब अंबेडकर दी करके जावां। ते नाल भाजी आर्कीटैक्ट जिहड़े कि बिल्डिंगां दा निर्माण करदे आ, कमलजीत भाजी तलण तो सॉरी वो भी भाजी आए ने। ये बिल्डिंगां दा निर्माण करन दे नाल नाल अपने समाज दी नींह नूं पक्का करन दा काम करदे आ।
ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਜੋ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਸਰਵਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ बेटा, हेलो बेटा, मैं तुहानू सच्ची नाल ले जाना। इन्हों ना प्रबंधक वीर कोई एक अद्धा कोल बैठो बच्चों के, क्योंकि ये नादान है, इन्हों के भविख की चिंता करने वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए हैं। साडी तो निकल गई है, अज तो ज्यों दियां त्यों जिन्नी साडी बढ़ती सी असीं अपनी कढ लई, पर इन्हों के भविख की चिंता है, इस करके आप बैठे हैं। साथी संदीप सरोए जी जेडे कि अपने समाज के गीत लिखते हैं, और वह भी मेरे दरम्यान इत्थे बैठे ने, मैं उन्होंने भी सलूट करदा जेडे अपने समाज के वास्ते चिंता व्यक्त करते हैं। साथी रजिंदर जी वह भी तुहाडे नूरमहल तो तुहाडे दरम्यान है, मैं उन्होंने भी धन्नवादी हाँ। सत्कारयोग साथियों, पिंड निवासियों, तुसीं बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हो। जन्म लेना किसी मनुख का कोई महान नहीं हुंदा। जन्म जिस तरह इस देश के अंदर बाकी लोगों ने लिया, जे आप कह दीजिए कि 14 अप्रैल 1891 नूं लखां लोग भारत की धरती ते जन्म ले होणगे, जमे होणगे, पर जन्म लेना किसी का कोई महान नहीं हुंदा। जेकर किसी व्यक्ति नूं कोई महान बनाउंदा तो ਉਹਦਾ मरना महान बनाउंदा। ਉਹ मरदा किस तरह है, ਉਹ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ करदा की है। बाबा साहब अंबेडकर दी जे ਅਸੀਂ जय जयकार करी चलिए, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद कहण दे नाल जिंदाबाद नहीं होनी ना। बाबा साहब अंबेडकर ने तुहाडे मन दे अंदर कोई तकलीफ खड़ी करनी है, ना तुहाडी कदी सुपने दे विच आके तुहानू कदी परेशान करना कि मेरी तुसी जय जयकार करो। पर जेकर फिर भी तुसी बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार कर रहे हो तो उहदे पिछे साथियों एक बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संघर्ष है, और उस बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संघर्ष जेड़ा अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, ना अपने बच्चों के वास्ते, ना अपनी धर्म पत्नी के वास्ते, ना संघर्ष अपनी नौकरी के वास्ते, ना संघर्ष इस देश के अंदर पैसे के वास्ते, ना संघर्ष इस देश के अंदर शौहरत के वास्ते। ते जे संघर्ष किया तो जेड़ा तुसी समाज अज इस देश के अंदर कुर्सियां ते बैठा, मेरियां बीबियां बैठियां, इन्हों बराबर बिठाने के वास्ते इस देश के अंदर विरोधियों नाल लड़ के संघर्ष किया। इस करके बाबा साहब अंबेडकर का आप अज जन्मदिन मना रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष की गल जड़ी एक दो कहानियां मैं तुहाडे नाल करांगा। जदों बाबा साहब अंबेडकर जदों बचपन दे विच बाल अवस्था दे विच सी, असीं नाटक भी करते रहे हैं। जदों बाल अवस्था दे विच सी तां बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़े बाल वधे होए सी ते जिहड़े बाल वधे होए सी ते जदों उन्हां दी भूआ उन्हां नूं नाई दे कोल लैके गई ते नाई ने बाल कट्टण तो इनकार कर दिता। कहा कि जेकर मैं इहदे बाल कट्टांगा ते जिहड़े उच्च जाति दे लोग ने वो मेरी दुकान दे उत्ते आना बंद कर देणगे, मैं एक छूत बच्चे दे बाल नहीं कट सकदा, ते मना कर दिता। मना करन तो बाद बाबा साहब अंबेडकर दी भूआ उन्हां नूं घर लैके गई। बाबा साहब अंबेडकर दी भूआ ने उहदी आप हजामत की बाबा साहब अंबेडकर दी, ते बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल किया कि भूआ जी मेरे नाई ने बाल क्यों नहीं कट्टे? ते बाबा साहब अंबेडकर दी भूआ ने कहा कि इस सवाल का जवाब पुत्रा तेनू आप लभना पएगा कि तेरे बाल क्यों नहीं कट्टे। ते बाबा साहब अंबेडकर दे दिमाग दे विच वो गल बैठी हुई सी। ऐसी तरह बाबा साहब अंबेडकर निरंतर लगातार चलते गए पढ़ते गए, और पढ़न तो बाद मैं एक दो कहानियां तुहाडे नाल बाबा साहब दे नाल जिहड़ियां संबंधित है मैं वो साझियां करनियां। जदों बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर काम करते सी तो बाबा साहब अंबेडकर नूं जिन्नियां औकड़ां आईयां इस देश के अंदर कोई भी इदां दा लीडर नहीं जिन्नियां बाबा साहब अंबेडकर नूं औकड़ां आईयां, जिन्नियां बाबा साहब अंबेडकर नूं मुसीबतां आईयां। इस देश के अंदर कोई भी इदां दा लीडर नहीं जिन्ना अपमानित बाबा साहब अंबेडकर होया कि उन्हां दे मुताबिक कोई होर लीडर इन्ना अपमानित होया होवे, इन्ना जिहड़ा तुहाडा पुरखा इस देश के अंदर अपमानित होया।
इस देश के अंदर उस